Stop. Before you skip this video, answer me this was one question. BCG vaccination is protective against pulmonary TB. True or false? If you said true, my friend, you just lost your 1 mark over there. And that is exactly why we are here. I am your host, Dr. Chetan Sharma, and today's topic of discussion is vaccination and national immunization schedule. This is the single most high yield PSM topic asked in every FMG, INI-CT and NEET PG examination. In the next 45 minutes, I will walk you through every concept that you need to know, every PYQ that has been asked, and every examination trap that has been set. And at the end of this video, I am going to give you my prediction what questions are most likely to come in your examination. So stay till the end. Let's go. चलिए स्टार्ट करते हैं विद लेटेस्ट अपडेट्स. WHO सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन टारगेट इंसिडेंस रेट इज. सबसे पहले WHO सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन टारगेट क्या है? 90, 70 and 90. What is this 90, 70, 90? 90% girls vaccinated with HPV. कब तक? By the age of 15 years. Okay. 70% women screened. Okay, 70% women का स्क्रीन होना चाहिए किसमें? Between 35 to 45 years of age. And 90% diagnosed women on treatment. 90% of the women जिनका diagnosis हो गया है वो ट्रीटमेंट पे होनी चाहिए. So coming back to the question, इंसिडेंस रेट कितना है एलिमिनेट करने के लिए? द आंसर इज लेस देन 4 per 1 lakh ऑफ वुमेन. ठीक है. सेकेंड, व्हाट इज द सेकेंड अपडेट? द नेशनल सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन कैंपेन इज नाउ लाइव फॉर 14-year-old गर्ल्स. ठीक है. द वैक्सीन हैज बीन गिवन. व्हाट इज एग्जाम ट्रैप हियर? मेनी स्टूडेंट्स आंसर्स सर्विरेक्स और सर्वावैक. ठीक है, रॉन्ग. नेशनल कैंपेन के लिए क्या है? गार्डेसिल 4. ओके, यहाँ पे देखो नेशन वाइड कैंपेन की बात हो रही है. द आंसर इज गार्डेसिल 4. कितना? 1 डोज, सिंगल डोज HPV के, कवर स्ट्रेन ऑफ 6, 11, 16 and 18. Okay. India has its own vaccine called Servavac. Age of 9 and 14, 2 dose at 0 and 6 months. ओके. वुमेन 15 and above 3 डोज. तो अगर 9 to 14 का इसमें है तो 2 डोजेस लग रहे हैं उसके सर्वावैक के, और 15 ईयर्स में 3 डोज लग रहे हैं उसके. ओके. बोथ नीड टू बी इन योर मेमोरी. नहीं, व्हाट इज द अपडेट 3? द कैंसर क्विक फैक्ट्स. मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड. अगर मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड की बात अगर अपन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? ब्रेस्ट कैंसर. ओके. एंड मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया. जब भी रूरल इंडिया की अगर बात करेंगे कैंसर के रिगार्डिंग में तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? इट इज सर्वाइकल कैंसर. ठीक है. मैक्सिमम मॉर्टेलिटी किसमें होती है? मैक्सिमम मॉर्टेलिटी होती है ब्रेस्ट कैंसर में. एंड ऑल 3 हैव बीन आस्क्ड इन MCQ. ओके. So now you can able to answer. Servavac schedule for 9 to 14 years is, now tell me the answer. Yes, 2 doses, 0 and 6 months. Most common cancer worldwide is, आपको पता चल रहा है, अभी अपन डिस्कस किया. C, breast. India's first approved dengue vaccine. तो India's brand new dengue vaccine, it's called Qdenga. Okay. Qdenga, also known as TAK-003, approved for 4 years to 60 years. Okay. It is not in the NIS yet. ये NIS में अभी नहीं है, but it has already been asked in NEET PG 24. Okay. Okay.
So India's first approved dengue vaccine is Qdenga. Okay. Now moving forward, 5 apps, 5 potential MCQs, all have been asked in FMG and INICT examination. Okay, as image based or in one liner question. EVIN primarily monitors. Next question is EVIN primarily. What is EVIN here? Electronic EVIN stands for electronic vaccine intelligence network. Okay, EVIN stands for electronic vaccine intelligence network. Monitors vaccine stock and cold chain logistics. क्या करेगा ये? मॉनिटर करेगा क्या? एक तो स्टॉक्स और दूसरा कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को. ओके, safe reports adverse. Now coming to the next thing, so the answer for your question is even primary monitors, cold chain and stock. Now another thing is safe. सेफ क्या करता है? ये रिपोर्ट करता है एडवर्स इवेंट्स को. रिपोर्ट एडीआर आफ्टर इम्यूनाइजेशन. okay, that is AEFI. okay, what is UVIN? So UVIN is digital immunization card for 0 to 5 years old. 0 to 5 years old okay, बच्चों के लिए ये एक डिजिटल इम्यूनाइजेशन कार्ड है. ओके, व्हाट इज किलकारी? ये भी यहाँ पे जान लेना जरूरी है. किलकारी क्या है? ये वीकली ऑडियो मैसेज होता है. ओके, ऑडियो मैसेज कब आता है? वीकली आता है. किस चीज के लिए होता है? ये मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के ऊपर होता है. सो नाउ यू नो व्हाट इज ईविन, सेफ, यूविन, किलकारी. ओके, सो you can easily answer now. UVIN is used for, so can you answer this? Yes, immunization registry. UVIN 0 to 5 year digital immunization card. Okay, so moving forward, BCG vaccination. Okay, BCG वैक्सीनेशन जो है वो एग्जामिनर्स का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है. अगर सपोज करो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक 9 महीने का बच्चा है, 9 मंथ का बच्चा है जिसको BCG स्कार नहीं दिख रहा आपको, तो मदर रिक्वेस्ट रिपीटेड डोज. आप क्या करोगे? ओके, ऑप्शन ए गिव BCG अगेन, ऑप्शन बी डू द मॉन्टूक्स टेस्ट, एंड ऑप्शन सी रीश्योर द मदर एंड रेफर टू द स्पेशलिस्ट. द आंसर इज सी. आपने मदर को रीअश्योर करना है. क्यों? BCG स्कार फॉर्मेशन हर बार नहीं होता. इट इज नॉट मैंडेटरी. ये मैंडेटरी नहीं होता. इट यूजुअली टेक्स 8 to 12 weeks for the scar to form. Okay, not forming a scar does not mean the vaccine has been failed. Okay, if the vaccination card confirms the dose, that means कि you should need to reassure your patient कि ठीक है, अगर वो नहीं हुआ है स्कार फॉर्मेशन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको दोबारा से वैक्सीनेट करें, मतलब रीवैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है. सो हियर इज योर क्वेश्चन. BCG scar usually appears after, answer is 8 to 12 weeks. Very good. Okay, so now moving forward. Now this question has been asked almost every year. घुमा फिरा के इस एग्जाम में या उस एग्जाम में पूछ ही लेते हैं. BCG dose at birth. So मैं आपको थोड़ी थ्योरी डिटेल कर देता हूँ यहाँ पर. सबसे पहले एट बर्थ, ठीक है, टू 1 month कितना देना है? 0.05 ml इंट्राडर्मल जाएगा. और अगर 1 month से बड़ा बच्चा है तो उसको कितना देना है? 0.1 ml इंट्राडर्मल जाएगा. ओके, if you give more than 0.05 ml in less than 1 month child, it may lead to क्या?
लिम्फेडेनाइटिस, आप उसको लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन करवा के मारोगे। ओके, बीसीजी डोज एट बर्थ इज 0.05 ml. Okay, the most common side effect of BCG is ulcer formation, not lymphadenitis. Remember, it is not lymphadenitis. Okay, so that's from, and if the option is lymphadenitis, always remember lymphadenitis हमेशा overdose के वजह से होता है। ओके, लिम्फेडेनाइटिस जो होगा वो हमेशा ओवरडोज के वजह से होगा, जो अभी अपन ने जस्ट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नाउ द अनदर थिंग इज डायरेक्ट बीसीजी वर्सेस इनडायरेक्ट बीसीजी। ओके, अप टू 1 ईयर, देखो यार, 1 साल तक के बच्चों के लिए गिव डायरेक्टली। ओके, नो नीड टू डू ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, बट आफ्टर 1 ईयर अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है, वैसे केस में ऑलवेज डू ट्यूबरकुलिन टेस्ट फर्स्ट। ओके, सबसे पहले आपने ट्यूबरकुलिन टेस्ट करना है एंड दैट बिकम्स योर इनडायरेक्ट। ओके, सिंपल रूल, टेस्ट रिपीटेडली। ठीक है, सिंपल फंडा है, कई बार घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नाउ बीसीजी एफिकेसी। बीसीजी अगर एफिकेसी की हम बात करें तो ये 0% होता है अगेंस्ट पल्मोनरी टीबी। 0% होता है अगेंस्ट पल्मोनरी टीबी। व्हाट डज इट प्रोटेक्ट्स? इट प्रोटेक्ट्स ओनली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि मिलियरी टीबी हो गया, सीएनएस में इसका हो गया, डिसैमिनेटेड हो गया, स्केलेटल टीबी हो गया। ठीक है, तो ये भी मोस्ट कॉमनली एग्जाम ट्रैप है आपके लिए। ओके, एग्जाम में कई बार ऐसे पूछते हैं कि बीसीजी सभी फॉर्म्स ऑफ टीबी को प्रोटेक्ट करता है, नहीं। ठीक है, ओके, सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी मेनली प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, कैन यू आंसर इज? ओके, pulmonary TB, drug resistant TB, extrapulmonary TB, latent TB. The answer is yes, very good. C, extrapulmonary TB. Now, diluent for BCG vaccine. What is the diluent for BCG vaccine? Again, normal saline. Normal saline is used as diluent for BCG vaccination. Okay, so next question, which is a live vaccine? Hepatitis B, IPV, measles or rabies? सो आंसर इज मिजल्स। चलो अभी अपन इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसमें आपने याद रखना है बीसीजी में एक और चीज, कि बीसीजी इज अ फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। ठीक है, तो इसमें डालुएंट हमेशा नॉर्मल सेलिन रहने वाला है। अगर एक बार रिकंस्टिट्यूट कर दिया तो यूज्ड विद इन 4 आवर्स। ओके, याद रहेगा, 4 घंटे के भीतर इसको अपने को यूज कर लेना है। एक बार वो करने के बाद में स्टोर कहाँ करेंगे? एम्बर वाइल्स में। एम्बर वाइल्स में इसको स्टोर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है। ओके, डज नॉट फॉलो ओपन वाइल पॉलिसी, ये ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है बीसीजी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव वैक्सीन वाले पर। तो लाइव वैक्सीन का एक फॉर्मूला है, एक न्यूमोनिक है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइव वैक्सीन यहाँ पे मिजल्स है। मिजल्स के अलावा और कौन कौन सी लाइव वैक्सीन होती है? सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो नेजल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा नेजल वैक्सीन, बीसीजी, रोटावायरस, ओके, येलो फीवर वैक्सीन इज ऑल्सो लाइव वैक्सीन, ओपीवी, जेई, रिमेंबर फॉर द एंडेमिक एरियाज। ओके, देन मिजल्स तो है ही है। ओके, उसके अलावा में चिकन पॉक्स की वैक्सीन। ओके, ये सारी इसमें लाइव वैक्सीन होती है। मिजल्स स्ट्रेन बीज इंडोमोस्टन जैग्रेब, इसका याद रखना है, ये इंडोमोस्टन जैग्रेब स्ट्रेन होती है इसकी। ठीक है, और चिकन पॉक्स की स्ट्रेन कौन सी होती है? चिकन पॉक्स की स्ट्रेन होती है ओके ए। ओके, और जेई की भी स्ट्रेन में बता देता हूँ, दिस इज SA14-14-2। ओके, चलो इसके अलावा में किल्ड वैक्सीन की अगर अपन बात कर लें,
किल्ड वैक्सीन में कौन कौन सी होती हैं? देखो यार, डी से अपने आ जाता है डी फॉर डॉग, ठीक है, तो डी से डॉग के लिए अपन देते हैं रेबीज वैक्सीन, ठीक है, याद रहेगा। ओके, सो आईपीवी किल्ड आईपीवी क्या होता है? किल्ड वैक्सीन होता है। ओके, उसके बाद इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन इज किल्ड। इंजेक्टेबल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो होती है वो भी किल्ड वैक्सीन होती है। ओके, सो केएफडी वैक्सीन इज आल्सो किल्ड। तो याद रहेगा, डी से फॉर डॉग से आ गया अपना ये आई से अपनी आ गई आईपीवी, ठीक है, आईपीवी आ गया और इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन वैक्सीन आ गया, और के से यहाँ पे केएफडी वैक्सीन आ गई। चलो, उसके बाद बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट के लिए। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है? सो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन होती है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। इसमें अपन HBsAg सरफेस एंटीजन का इस्तेमाल किया जाता है। HPV वैक्सीन होती है गार्डासिल, ठीक है, गार्डासिल एंड सर्वीरेक्स। गार्डासिल एंड सर्वीरेक्स वैक्सीन आर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ओके, तीनों वैक्सीन अपन ने कवर कर ली, लाइव भी, किल्ड भी और रिकॉम्बिनेंट भी। चलो, नाउ अपन क्वेश्चंस को देखते हैं इनके। सो you can easily answer now. Hepatitis B vaccine is again which type of vaccine? Killed vaccine. Okay, PPS vaccine is not given below. The answer is yes, 2 years. अभी अपन इसको भी देख लेते हैं, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स को, ठीक है, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स। ओके, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन का क्या रहता है, कौन कौन सी है? तो हिब और मेनिंगो कोकल वैक्सीन्स। ओके, उसके बाद में टाइफॉइड की वैक्सीन। ओके, क्रिटिकल रूल क्या है? कोई भी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन लेस देन 2 इयर्स में नहीं देते हैं। ये गोल्डन रूल है, इसका याद रखना। कोई भी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन लेस देन 2 इयर्स में नहीं देनी है। ऑलवेज लेस देन 2 इयर्स में कौन से इस्तेमाल करते हैं? कॉन्जुगेट वैक्सीन। ओके, कॉन्जुगेट वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को किस चीज की जरूरत होती है? नीड टी सेल इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स की पॉलीसैकेराइड वैक्सीन को जरूरत होती है, जो कि इमेच्योर इम्यून सिस्टम में नहीं होती है, अच्छे से माउंट नहीं कर सकते। इसीलिए लेस देन 2 इयर्स के केस में पॉलीसैकेराइड वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इफ 2 live vaccines are not given together, minimum gap is, yes, the minimum gap is of 4 weeks. Okay, ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे हमेशा लास्ट मोमेंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अपन ध्यान रखेंगे, 3 रूल्स हैं बेसिकली। व्हाट इज द रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 स्टेट दैट 2 live vaccine can be given together but at different site. ओके, अगर साथ में दे रहे हैं टुगेदर बट डिफरेंट साइट पर, ओके, अगर साइमल्टेनियसली नहीं दे रहे हैं तो मिनिमम 4 वीक्स का गैप होना जरूरी है। ओके, दैट इज 28 days. What is the rule 2 here? What does our rule 2 say? Live vaccine and immunoglobulin. If you give live vaccine first, अगर अपन ने किसी पेशेंट में या बच्चों में लाइव वैक्सीन पहले दे दी है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन को एटलीस्ट 2 वीक से डिफर कर देंगे। ओके, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन पहले दे दिया है, तो ये 12 वीक्स के बाद फिर आपने लाइव वैक्सीन लगानी है। ओके, स्टूडेंट्स हमेशा मिक्सअप कर देते हैं 2nd वीक एंड 12 वीक रूल को, क्योंकि उसको हमेशा पलट के वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा फंडा, लाइव वैक्सीन अगर आपने दे दी है और फिर इम्यूनोग्लोबिन देना है तो 2 हफ्ते के लिए वेट है। अगर आपने इम्यूनोग्लोबिन पहले दे दिया है फिर लाइव वैक्सीन देनी है तो 12 वीक्स का गैप है।
ठीक है, ओके। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? हाँ, इफ इम्यूनोग्लोबिन गिवन फर्स्ट, लाइव वैक्सीन शुड बी डिलेड बाय 12 वीक्स। ओके, येलो फीवर वैक्सीन जो होती है वो 17D स्ट्रेन, ओके, 17D स्ट्रेन पे इस्तेमाल कर होती है। ये एक लाइव वैक्सीन होती है, ओके, और इसमें इम्यूनिटी स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम द डे 10 पोस्ट वैक्सीनेशन। 10 डेज के बाद से इसमें इम्यूनिटी स्टार्ट होती है, इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती। ओके, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड, सर्टिफिकेशन वैलिड 10 years पर चेंज होता है यूजुअली। ओके, सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है? दिस वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन में ये वैक्सीन नहीं लगाना है, और अगर देते हैं तो रिस्क बहुत हाई होता है। ओके, प्रेगनेंसी। एंड नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज लैक्टेशन। लैक्टेशन में भी नहीं देना है। अगेन, जिनमें एग एलर्जी होती है उन पेशेंट्स में भी ये येलो फीवर की वैक्सीन नहीं देनी है। ओके, सो नाउ यू नो येलो फीवर वैक्सीन मेन स्ट्रेन इज 17D। ओके, येलो फीवर वैक्सीन इम्यूनिटी बिगिंस आफ्टर 10 days। चलो नेक्स्ट इज लाइव जेई वैक्सीन स्ट्रेन। ओके, चलो इसको भी अभी समझते हैं। सबसे पहली बात तो जापानीज इनकेफेलाइटिस की वैक्सीनेशन जो है हम हमेशा एंडेमिक एरियाज में ही देते हैं। ओके, तो ये अपने को सिर्फ एंडेमिक एरियाज के बच्चों को देना है। ओके, इसमें लाइव स्ट्रेन कौन कौन सी होती है? SA 14 2 ये इस्तेमाल करते हैं। इंडियाज ओन जेई वैक्सीन है, उसका क्या नाम है? जीव, JEEV। ओके, विच इज अ किल्ड वैक्सीन। जीव जो क्या है वो किल्ड वैक्सीन है और इक्वली इफेक्टिव है। अनदर वैक्सीन इज जेनवैक। ओके, जेनवैक वैक्सीन क्या करती है? अनदर किल्ड वन है, ये भी किल्ड वैक्सीन होती है जेनवैक भी, और ये इस्तेमाल क्या करती है? ये कोलार स्ट्रेन को इस्तेमाल करती है। ओके, कोलार स्ट्रेन, ये कोलार स्ट्रेन को इस्तेमाल करती है। अगर इन आउटब्रेक ऑफ जेई, अगर जेई का आउटब्रेक होता है, अगर जेई का आउटब्रेक होता है तो अपने को क्या करना है? अपने को किल्ड इंट्रामस्कुलर वैक्सीन का यूज करना है टू अवॉइड क्या? स्प्रेड। स्प्रेड को अवॉइड करने के लिए किल्ड इंट्रामस्कुलर वैक्सीन का अपन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो लाइव जेई वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस जाती है, और किल्ड जेई वैक्सीन जो होती है वो IM लगाते हैं, कहाँ? लेफ्ट थाई पर। ओके, ये लगाते हैं 0.5 ml। ओके, सो आई बिलीव जेई के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी हो चुकी है। सो हेयर व्हाट इज द क्वेश्चन? लाइव जेई वैक्सीन द स्ट्रेन, अब आप बता सकते हैं मुझे कौन सा स्ट्रेन इस्तेमाल करते हैं? यस, यू आर राइट, द आंसर इज 14-14-2। कोलार वाली किल्ड में इस्तेमाल करेंगे। रिमेंबर, K फॉर कोलार, K फॉर किल्ड। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मिजल्स। मिजल्स के लिए वैक्सीन स्ट्रेन इंडोमोस्टोन जैग्रेब इस्तेमाल होता है। ये कहाँ देते हैं? ये सबसे पहले तो सबक्यूटेनियस देते हैं, और ये राइट अपर आर्म पर देते हैं। ओके, राइट अपर आर्म पर अपन मिजल्स वैक्सीन को देते हैं सबक्यूटेनियसली। इसमें 7 to 10 days बाद, 7 to 10 days बाद में एंटीबॉडीज आती हैं, इसकी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, दिस इज व्हाई मिजल्स इज द ओनली वैक्सीन गिवन पोस्ट डिजास्टर। इट इज द ओनली वैक्सीन गिवन पोस्ट डिजास्टर। व्हाई? क्योंकि 10 to 14 days का टाइम लगता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, और अपन वैक्सीन देते हैं तो वो 7 to 10 days में ही एंटीबॉडीज बना देती है, इसीलिए हम इसको पोस्ट डिजास्टर भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन कब तक? अप टू 3 days ओनली। ओके, अप टू 3 days में इसको अपन इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ यू कैन टेल मी, measles वैक्सीन इज गिवन बाय SA route। ओके, only vaccine routinely given post disaster is measles। okay, Shankol protects against, what is Shankol? Okay, this is an oral
ये ओरल कोलेरा वैक्सीन है। ओके, ये विब्रियो कोलोरी के सेरो ग्रुप O139 एंड O1, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रेन के अगेंस्ट में काम करती है। ये क्या करती है, ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराती है। बाईवैलेंट डिज़ाइन होता है इसका, बाईवैलेंट ये रहती है। कब देना है, ये 1 ईयर्स ऑफ एज, 1 ईयर या उससे ज़्यादा की एज में देते हैं। 2 ओरल डोज जाती है इसकी, 2 ओरल डोज यूजुअली देते हैं। और ये कब, कितने, 14 डेज अपार्ट। ओके, 14 डेज अपार्ट इसको देना है। एट बर्थ, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले बर्थ पे अपन को क्या क्या दे रहे हैं, अपन बर्थ पे अपन दे रहे हैं BCG प्लस OPV 0 डोज। उसके बाद हेपेटाइटिस B 0 डोज। उसके साथ में फिर 6, 10, 14 पर इसका पेंटा 1, 2, 3 आ जाएगा। ओके, देन OPV 1, 2, 3 एंड रोटा 1, 2 एंड 3, then PCV 1 and 2 only, FIPV fractional IPV 1 and 2 only। ठीक है, तो चलो 9 मंथ्स पे क्या दे रहे हैं अपन, 9 मंथ्स पे अपन दे रहे हैं MR प्लस विटामिन A, ओके, एंड JE1, ठीक है, और FIPV का 3rd डोज। ओके, फिर 16 to 24 मंथ्स पे अपन क्या दे रहे हैं, 16 to 24 मंथ्स पे अपन दे रहे हैं MR का 2nd प्लस DPT का बूस्टर डोज। ओके, DPT बूस्टर 1। देन 5 to 6 ईयर्स पे अपन DPT बूस्टर 2 दे रहे हैं। देन 10 to 16 ईयर्स पे TD1 एंड TD2। ठीक है, तो चलो अपन आंसर इसका देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सो एट बर्थ NIS प्रोवाइड्स, व्हाट इज द ऑप्शन, BCG OPV 0, हेपेटाइटिस B 0। ओके, फ्रैक्शनल IPV डोज, फ्रैक्शनल IPV की डोज कितनी देते हैं अपन, 0.1 ml। कितनी देते हैं, 0.1 ml। फ्रैक्शनल IPV का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शनल मीन्स 1/5, फ्रैक्शनल मीन्स 1/5 ऑफ द फुल डोज। ठीक है, तो ये निकल के आता है 0.1 ml। कहाँ देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं। ओके, इंट्राडर्मल कहाँ देते हैं, राइट आर्म में देते हैं। ओके, टोटल कितनी डोज है, टोटल 3 डोज होती है इसकी, 6 वीक पर। उसके बाद 10th वीक पर नहीं देना है। उसके बाद सीधा 14th वीक्स पर, और उसके बाद 9 मंथ्स पर। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नाउ 0.1 ml दे रहे हैं। फ्रैक्शनल IPV का रूट क्या है, इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म। ओके, सो अब नाउ पेंटावेलेंट वैक्सीन, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, देखो पेंटावेलेंट एज द नेम सजेस्ट 5 वैक्सीन, उसमें 5 डिजीज कवर होती है। कौन कौन सी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा B। ठीक है, ये कैसे देते हैं, ये IM देते हैं। कहाँ देते हैं, लेफ्ट थाई पर देते हैं। कितना देते हैं, 0.5 ml देते हैं। ठीक है, ये एक T सीरीज की वैक्सीन है, ध्यान रखना। ओके, चलो, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 5 डिजीज। MR वैक्सीन कैन बी गिवन अप टू 9 मंथ्स पे स्टार्ट किया है अपन ने, तो अपन कब तक इसको दे सकते हैं, अपन 5 साल तक की एज तक के बच्चों को MR वैक्सीन दे सकते हैं। को अगर मैं समराइज कर दूं तो एज लिमिट आप देख लो। सबसे पहले BCG, देन
पेंटा, then rota, okay, then fractional IPV, then PCV और हेपेटाइटिस बी। ये सारी वैक्सीन्स आप 1 ईयर तक के बच्चों में दे सकते हैं। देन MR, OPV, विटामिन ए, ये 5 साल तक में दे सकते हैं। देन DPT आप 7 ईयर्स तक में दे सकते हैं। एंड देन कम्स JE, ये आप 15 ईयर्स तक में दे सकते हैं। ओके, सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, JE वैक्सीन अंडर NIS कैन बी गिवन अप टू 15 years. Now, missed dose rule. Never restart the vaccination once a dose is missed. Okay? Always continue from where the child left. Okay? So, suppose a child who got 1 dose of DPT, अगर एक बच्चा है जिसको आपने DPT का 1 डोज दे दिया है 6 वीक्स पर, ओके, एंड उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, अभी वो 12 महीने का हो गया है और आपके पास में आया है, तो क्या करना है? अपने को सीधा 2nd डोज देना है, रीस्टार्ट नहीं करना है। ओके, बूस्टर नहीं देना है, सीधा 2nd डोज। ये सेम क्वेश्चन INICET 2022 में पूछा। सो गोल्डन रूल फॉर कैचअप इम्यूनाइजेशन, कंटिन्यू वेयर लेफ्ट। ओके, सिम्टोमेटिक HIV चाइल्ड शुड नॉट रिसीव, so what does he should not receive? BCG वैक्सीनेशन। अगर HIV चाइल्ड है तो उसमें BCG वैक्सीनेशन नहीं देना है। कब तक नहीं देना है? द केस ऑफ HIV। सी, अगर एसिम्टोमेटिक है, अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक HIV है तो नो वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो जितनी भी वैक्सीन्स हैं, लाइव वैक्सीन्स, वो सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्सेप्ट OPV। सो अगेन BCG इज नॉट ऑल्सो नॉट गिवन इन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। ओके, BCG भी नहीं देते हैं। और सिबलिंग्स जो होते हैं सिम्टोमेटिक HIV पेशेंट्स के, सिबलिंग्स में भी OPV नहीं देते हैं। ओके, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के सिबलिंग में भी, उनमें भी IPV देना सही रहता है। सो हियर इज द क्वेश्चन, सिम्टोमेटिक HIV चाइल्ड शुड नॉट रिसीव BCG। सो एग एलर्जी कॉन्ट्राइंडिकेट्स, एग एलर्जी, एग एलर्जी एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, येलो फीवर की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, विच इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। mild fever always it is not a contraindication for vaccination। okay, डायरिया अगर है, क्वाशियोरकर अगर है, मेरास्मस अगर है, इन केसेस में वैक्सीनेशन को स्टॉप नहीं करते हैं। ओके, सो कई बार एग्जामिनर आपसे ऐसे भी पूछता है कि चाइल्ड विद माइल्ड फीवर, student always think of delaying the vaccination. It is wrong. Reconstruction vaccine follow OPV. What are the options? Always, never, only in PHC, only OPV. It is answer is never. Okay. Cold chain question have increased frequency from last 3 years in FMG examinations. Okay. Image based VVM questions are also there. So let's study this. हीट सेंसिटिव ऑर्डर, हीट सेंसिटिव ऑर्डर में देखते हैं अपन इसको। ठीक है, का एक न्यूमोनिक है RBOMB, आर बॉम्ब। देखो यार, रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन जितनी भी रहेंगे ना, रिकंस्टिट्यूटेड BCG ये मोस्ट सेंसिटिव होती है। देन कम्स OPV, देन मिजल्स, okay, then BCG unreconstituted,
The T series vaccine. The T series vaccine are least heat sensitive. Okay, and the hepatitis B is the most freeze sensitive among these. ठीक है, so the least heat sensitive, students pick OPV thinking it's the stable one, but the least heat sensitive जो रहेगा वो मोस्ट स्टेबल रहेगा हीट में, और वो हमेशा टी सीरीज की वैक्सीन होती है. इसमें हेपेटाइटिस बी को हमेशा आपको अगर दिया है तो चूज करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज reconstituted BCG, the least heat sensitive vaccine. कौन सी होगी इसमें से? टी सीरीज. ILR में नीचे कोल्ड एयर ब्रीज होती है, ऊपर वो ओपन होता है, ऊपर से खुलता है, नीचे ठंडी हवा ज्यादा होती है. ओके, तो इसमें क्या करना होता है, जो हीट सेंसिटिव रहेगी वो सबसे नीचे रखेंगे अपन. सो बॉटम में हीट सेंसिटिव जितनी भी रहेगी वो बॉटम में रहेगी, जैसे कि OPV, BCG. ठीक है, देन मिजल्स आ जाएगी इन द मिडल. ओके, MM ध्यान रखना आपको. देन टी सीरीज वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वगैरह ये सारी टॉप पे आ जाएगी. ओके, बिकॉज इट इज फ्री सेंसिटिव. ओपन वाइल पॉलिसी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं OPV के रिगार्डिंग में. ओके, तो वैक्सीन्स दैट फॉलोज OPV, कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है? टी सीरीज की वैक्सीन है. टी सीरीज की जो वैक्सीन रहती है, इंक्लूडिंग पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी, TD, TT, OPV, IPV, PCV, रोटा. ठीक है, एंड वैक्सीन्स दैट डू नॉट फॉलो, जो OPV को नहीं करती, जितनी भी रिकंस्टिट्यूटेड वैक्सीन्स रहेंगी, जैसे कि BCG, मिजल्स, JE, येलो फीवर, रेबीज, ये सारी जो है वो इसको OPV को फॉलो नहीं करेगी. और याद रखना BCG जो है वो 4 आवर्स तक अपन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ सम मिसलेनियस क्वेश्चंस. OPV स्विच देखो कैसा होता है. अप्रैल 2016 की कहानी है ये, जब अपन ट्राईवैलेंट OPV से बाईवैलेंट OPV पर शिफ्ट हो गए. ओके, टाइप 2 रिमूव कर दिया था इसमें से. टाइप 2 अपन ने रिमूव कर दिया था. क्यों? क्योंकि ये सितंबर 2015 में इरेडिकेट हो गया था. ओके, टाइप 2 जो है वो CVD PV आउटब्रेक्स काउज करता था. IPV को अपन ने इंट्रोड्यूस कर दिया था टाइप 2 की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए. देखो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ये पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करती है थ्रू, कैसे? इनडायरेक्टली. और कहोगे साहब इनडायरेक्टली कैसे कर रही है? तो देखो, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन में 95% इम्यूनाइज है तो डिजीज वैसे भी नहीं फैलनी, तो 5 लोग अपने आप ही बच गए. लेकिन ये कभी भी टिटनस के साथ वर्क नहीं करता है. क्यों? क्योंकि टिटनस का ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन नहीं होता. पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है. ठीक है, यू कैन have 100% immunized community and still get tetanus from the soil. So all these were classical examples questions. ओके, ये हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आपको टेस्ट किए जाते हैं. बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो मैंने पिछले 5 साल के ट्रेंड को एनालाइज करके लिए आपके लिए प्रेडिक्शन निकाला है. सो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं.
सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के दें, आई विल सेंड यू इन पर्सनली DM। थैंक यू वेरी मच।